Hello everyone, welcome to this video. In this video, I'm going to take top 30 plus one bonus list of words that are most important from ZipMat point of view. Okay, so without further ado, let's start. First word is abate. The meaning of abate is become less. ठीक है, meaning is become less, diminish, decrease. ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इंटेंसिफाई, इंक्रीज. करेक्ट. अब इससे रिलेटेड दो वर्ड्स में है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ. मिटिगेट इज ऑल्सो रिड्यूस. करेक्ट. एंड दिस वर्ड यू माइट बी नोइंग, एग्जैसरबेट. एग्जैसरबेट का मीनिंग होता है worsen. So see, one word is abate, second is mitigate, third is exacerbate. In one word itself, I am, trying to expand into 2 or 3 more words. So basically, there won't be 30 words. There would be around, 70-80 words जो high frequency words होंगे जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. Okay? Now see, I have used it in a sentence also. The storm began to abate after midnight. So instead of abate, I can also use mitigate. The storm began to mitigate after midnight. Okay. Next is aberration. Aberration means anything that is not normal, any deviation that is happening from normal. Okay. That is called as aberration. Anomaly, irregularity is called as aberration. Obviously antonym would be normality, regularity. Correct. His rude comment was an aberration from his usual behavior, means deviation. Okay, deviation from his normal behavior. Okay, now for deviation I can think of one more word as digress. Got it? Digress means what? Moving away from main point. Digress means moving away from main point. So little bit meaning difference is there, because digress does not mean anomaly. Digress means moving away from main point. That is called as do not digress. We say like this, no, means what? Point पे रहो, digress मत करो. ठीक है? Let's go ahead. Next is abstain. Abstain means avoid doing. Okay, or denying yourself the pleasure of something. Okay, denying yourself the pleasure of something, that is also called as abstaining. Diet पे हो यार, no burger, no sweets, you are abstaining from burger, you are abstaining from sweets, means you are denying yourself the pleasure of something. Avoid doing, avoid eating burger, avoid eating sweets, abstaining. ठीक है. refrain और avoid. इंडल्जेंट पार्टिसिपेट क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे. इंडल्जिंग, भाई बहुत सारे बर्गर खा लिए, बहुत सारे स्वीट्स खा लिए, रसमलाई खा ली, काजू कतली खा ली. दैट इज व्हाट? इंडल्जिंग. गॉट इट? शी डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग जंक फूड. यही मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, है ना. नेक्स्ट, acrimony. Acrimony is bitterness. Okay, I can also say enmity. Enmity is one more word for this. Hostility, resentment, enmity is acrimony. एंटोनिम क्या होंगे इसके? गुडविल, फ्रेंडलीनेस, है ना. द डिबेट एंडेड विथ एक्रिमोनी बिटवीन द लीडर्स, मीन्स अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस, है ना, कड़वाहट. करेक्ट. देयर वॉज बैड ब्लड, है ना. आप क्या बोलते हो? देयर वॉज बैड ब्लड बिटवीन देम. सो बैड ब्लड को भी हम बोलेंगे, दिस वन मोर इडियम हो गया आपका यहाँ पे. देखो, बैड ब्लड इज इडियम, है ना. सो बैड ब्लड का मीनिंग क्या होगा? एक्रिमोनी. गॉट इट? adept. Adept is highly skilled, expert, proficient, है ना. जिसको आप क्या बोलते हो? वर्चुओसो भी बोलते हो. जिसको आप क्या बोलते हो? वर्चुओसो. वन मोर न्यू वर्ड, है ना. So I'm going to keep on expanding. So these 30 words are ultimately going to become 60 or 70 words. Okay. So virtuoso, ठीक है. Inept, unskilled. एंटोनिम होंगे इसके, है ना. inept and unskilled. She is adept at solving difficult math problems. She is proficient. She is an expert. She is a virtuoso. Got it?
अलीविएट इज रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम. मैंने अभी आपको क्या बोला? मिटिगेट. अगेन सेम, मिटिगेट. ओके, रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम. ईज, रिलीव, मिटिगेट. वर्सन, एग्रवेट. मैंने अभी कौन सा वर्ड बोला था आपको? एग्जैसरबेट, है ना. मेडिसिन विल हेल्प अलीविएट द पेन, रिड्यूस द पेन. पेन को हमें रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है, अबेट करना है, अलीविएट करना है. गॉट इट? एम्बिवैलेंट. एम्बिवैलेंट इज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स. ब्लूबेरी चीज केक खाओ या स्ट्रॉबेरी चीज केक खाओ, you have mixed feelings. You like blueberry cheesecake also, you like strawberry cheesecake also, है ना. So that is what you are ambivalent. Uncertain, conflicted, है ना. confused हो आप, है ना. इसको पता है, मैं इडियम फॉर्म में भी आपको बता देती हूँ. इडियम फॉर्म पता है इसका क्या है? सिटिंग ऑन अ फेंस. सिटिंग ऑन अ फेंस. भाई इस तरफ कूदू या इस तरफ कूदू? शुड आई जंप ऑन दिस साइड और शुड आई जंप ऑन दिस साइड? दैट इज सिटिंग ऑन अ फेंस. आई एम अनडिसाइडेड. व्हाट इट? आई एम अनडिसाइडेड. डिसाइसिव या सर्टन होगा ऑब्वियसली. ही फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट मूविंग टू अनदर सिटी. उसको जाना भी था पर ये वाली सिटी भी नहीं छोड़नी थी. दैट इज कॉल्ड एज एम्बिवेलेंट. ओके, अब इससे रिलेटेड वर्ड है गाइज, एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मीनिंग भी होता है अनसर्टन, बट देयर इज वन माइनर डिफरेंस. प्लीज नोट दिस. हैविंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. ओके, हैविंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, that is called as ambiguous. There's instability, means one meaning, one word can have multiple interpretations. That is called as ambiguous. If there is a question asked in exam, that exam का question आप कैसे interpret करोगे? Should I answer this or should I answer this? So the question is ambiguous. The question has multiple interpretations. So this is the difference between ambivalent and ambiguous. Please make sure you note this. एमिएबल. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. इसको मैं और एक वर्ड आपको देती हूँ, सोशिएबल, है ना. ग्रिगेरियस. सी, ग्रिगेरियस. मल्टीपल वर्ड्स बनते जा रहे हैं एक वर्ड से. सोशिएबल, ग्रिगेरियस. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, है ना. आवर न्यू टीचर इज वेरी एमिएबल एंड काइंड. ठीक है, अब रिलेटेड वर्ड देखो, एमिकेबल. एमिकेबल मतलब फ्रेंडली एंड पीसफुल. आप क्या बोल सकते हो इसको? म्यूचुअली बेनिफिशियल. म्यूचुअली बेनिफिशियल इज एमिकेबल. द डिवोर्स वॉज एमिकेबल. दे रीच्ड एन एमिकेबल अग्रीमेंट आफ्टर द डिस्प्यूट. कॉर्डियल, फ्रेंडली. अब ऑब्वियसली एंटोनिम सेम होंगे ना, हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली, है ना. नेक्स्ट, appease. Appease is to calm, satisfy, pacify, soothe. That is called as appease. अब एंटोनिम क्या होंगे? provoke, irritate, incite, है ना. incite भी बोलेंगे हम लोग. The mother tried to appease the crying baby, to pacify the crying baby. शांत करना किसी को. arbitrary is random. arbitrary का मतलब होता है random, abstract. ओके, इरेशनल, अनप्रेडिक्टेबल, है ना. अनप्रेडिक्टेबल. इसको पता है और एक वर्ड क्या बोलते हैं? मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल भी बोलते हैं. मर्क्यूरी देखो टेम्परेचर के हिसाब से कम ज्यादा होता है ना. थर्मोमीटर्स में जो मर्क्यूरी होता है, दैट विल राइज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड दैट विल फॉल अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. सो मर्क्यूरियल मीन्स वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है. लॉजिकल, रीजन्ड. द रूल्स सीम्ड आर्बिट्ररी एंड अनफेयर. द रूल्स वर रैंडम. Okay, now guys, make sure that mercurial and arbitrary are not synonyms. Okay, these are not synonyms. Mercurial का मतलब होता है volatile, fluctuating. ठीक है, मैं आपको related words बता रही हूँ. They are not exact synonyms, so please note this. Okay, fluctuating, that is called as mercurial. Let's go ahead. Audacious. Audacious is bold, adventurous. ठीक है, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, एडवेंचरस. ओके. टिमिड.
कॉशियस मतलब आप हिम्मत नहीं करते हो ज्यादा, आप में हिम्मत नहीं है करने की, सो दैट इज टिमिड, ओके, और कॉशियस. हर ऑडेशियस प्लान सरप्राइज एवरीवन, बोल्ड प्लान था उसका बहुत ही, ठीक है, दैट इज वाई ऑडेशियस. एवरिस इज ग्रीड, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, है ना, सब कुछ आपको चाहिए, ठीक है. जेनरोसिटी, सेल्फलेसनेस. His avarice made him hoard all the money. Means सब उसने पैसे जमा कर लिए, है ना, that is called as avarice. Benevolent, kind hearted. Here ben or born is the root, okay. So related words भी मैं आपको बता देती हूँ. Beneficent, okay, benediction, बेनिफैक्टर, ये सारे मैंने क्लासेस में लिए हुए वर्ड्स है. ऑल दीज वर्ड्स आई हैव टेकन इन आर रोधा क्लासेस, जो पोर्टल पे क्लासेस होते हैं. सो माय स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड द बिलीवर्स बैच आर दे नो ऑल दीज मीनिंग्स. मैंने ये सारे रूट्स क्लासेस में कराए हैं क्योंकि, ठीक है. चैरिटेबल, कंपैशनेट, अल्ट्रुइस्टिक. अल्ट्रुइस्टिक इज वन मोर वर्ड फॉर दिस, है ना, सिनोनिमस के लिए. क्रूअल, मलिशियस, evil, wicked, okay, that is called as antonyms है इसके ये सारे. The benevolent man donated food to the poor. generous था वो काफी, है ना. कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है भाई बस हो गया, इतना कर लिया, बहुत हो गया जिंदगी में, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है. ओवरली सेल्फ सेटिस्फाइड. सिनोनिम्स में स्मग आएगा, सेल्फ सेटिस्फाइड आएगा, है ना. एंटोनिम कंसर्न्ड, एम्बिशियस. द टीम बिकेम कंप्लेसेंट आफ्टर विनिंग सेवरल मैचेस. बस भाई हो गया, बहुत सारे मैचेस जीत लिए, अभी कुछ नहीं करना है. दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट हमेशा नेगेटिवली यूज होता है. दिस वर्ड हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके. Conspicuous. Conspicuous is easily noticeable, visible, obvious, है ना. इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर? हिडन, इनकंस्पिक्यूअस. सो हर ब्राइट ड्रेस मेड हर कंस्पिक्यूअस इन द क्राउड. नोटिसेबल, बहुत जल्दी नोटिस हो रही थी वो. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड इन एग्जाम्स. एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है ये वर्ड. प्लीज मेक श्योर आप इस वर्ड को अच्छे से याद रखो. कंस्पिक्यूअस, ओके. डिसेप्टिव इज मिसलीडिंग, है ना, मिसलीडिंग है ये, करेक्ट. डिसऑनेस्ट, डिल्यूसिव, इसको क्या बोलेंगे? मिसलीडिंग. जेन्युइन या ट्रूथफुल, है ना, जेन्युइन या ट्रूथफुल. द एडवर्टाइजमेंट वॉज डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग. आई टेल यू वन मोर वर्ड फॉर दिस. Specious. Specious means also misleading. Okay? So specious and deceptive are synonyms. Specious is misleading. ठीक है? Something that seems true but is not true. That is called as specious. Okay? So one more new word आपका हो गया यहाँ पे. Sedulous is hardworking, meticulous, असीडियस, सेड्यूलस, है ना. इसके लिए और भी वर्ड्स है हमारे पास. इंडस्ट्रियस, है ना. डिलीजेंट, करेक्ट, डिलीजेंट. फास्टिडियस, फास्टिडियस. बहुत सारे वर्ड्स हो गए देखो. सेड्यूलस, मेटिक्यूलस, असीडियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, फास्टिडियस. ऑल मीन्स हार्ड वर्किंग and attentive to details. Okay? Lazy, careless. The sedulous student completed every assignment carefully. ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स हो गए इसमें, है ना. प्लीज रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स. डिसडेन इज कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट. देखो इसी में सारे वर्ड्स हो गए, है ना. डिसडेन, कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट. ऑपोजिट क्या होगा? रिस्पेक्ट, एडमिरेशन. She looked at him with disdain. Extreme dislike. Okay? Extreme dislike. ठीक है? Feasible is possible, practical,
ओके लिखा है यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकल, अचीवेबल, है ना. द प्लान इज फीजिबल विद इन द गिवन बजट. डुएबल टास्क है ये. दिस इज कॉल्ड एज फीजिबल. फ्रूगल इज कंजूस. इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, miserly. Okay, miserly. Extravagant, wasteful, profligate. Profligate भी बोलते हैं इसको, profligate. Two new words, miserly and profligate. My grandmother is very frugal with her expenses. ठीक है. ग्रिगेरियस, मैंने बताया था आपको इमिएबल में ये वर्ड है ना. ग्रिगेरियस आया था. सोशिएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्टेड, टैसिटर्न. टैसिटर्न बोलते हैं जिसको, है ना. टैसिटर्न इज कम बोलने वाला, है ना. ही इज ग्रिगेरियस एंड एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल. करेक्ट. सो टैसिटर्न एक नया वर्ड है आपके लिए यहाँ पे. इम्पेकेबल इज फ्लॉलेस, परफेक्ट. डिफेक्टिव या फ्लॉड ऑब्वियसली, है ना. एंटोनिम क्या होगा. हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाज इम्पेकेबल, परफेक्ट एकदम, है ना, जिसमें कोई गलती ही ना हो. ऐसा अगर कुछ होगा तो उसको हम बोलेंगे इम्पेकेबल, फ्लॉलेस. इम्पीड, इम्पीड इज ऑब्स्ट्रक्ट. हिंडर, ब्लॉक. ठीक है. असिस्ट या फैसिलिटेट. सो हैवी ट्रैफिक कैन इम्पीड इमरजेंसी सर्विसेज. आप स्लो डाउन भी बोल सकते हो. पता है इसका मीनिंग जो होगा ना, वो स्लो डाउन भी हो सकता है. इट कैन स्लो डाउन इमरजेंसी सर्विसेज, इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट इमरजेंसी सर्विसेज. ठीक है. incessant is continuous, non-stop, constant. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा. intermittent, occasional, periodic, है ना. The incessant noise kept everyone awake. So incessant is continuous. ceaseless, ceaseless जिसको आप बोलते हो without stop, उसको बोलेंगे हम incessant. Monday is ordinary, रूटीन, कॉमन प्लेस, जिसको हम बोलते हैं ट्राइट. अनओरिजिनल, अनओरिजिनल, है ना. लैकिंग फ्रेशनेस, दैट इज ट्राइट. ट्राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, प्लीज नोट दिस. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल. ही वॉज बोर्ड विथ हिज मंडेन डेली रूटीन. ठीक है. सो इसको हम बोलेंगे ट्राइट. I'll tell you 2-3 new words related to trite also. ठीक है. Trite is banal, boring. Banal का मतलब क्या होता है. boring. I'll tell you one more word for this. hackneyed. Hackneyed is also boring, unoriginal. ठीक है. एक common word आपको पता है cliche. This is cliche, unoriginal, classic, बहुत बार यूज किया हुआ. So देखो, so many new words. Mundane, trite, banal, hackneyed, cliche. Okay? So बहुत सारे new words हो गए इसमें. So सारे words आपको याद रखने हैं. banal, hackneyed, trite, mundane. Novice, novice is a beginner, है ना. Amateur, learner, है ना. Expert या professional opposite होगा उसका. Correct? So as a novice driver, she was very careful. ठीक है. So she was new to that, है ना. जिसको हम ये भी बोलते हैं कि ग्रीन हॉर्न, है ना. समटाइम्स की अ पर्सन इज न्यू टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज नॉविस. ऑब्सोलीट इज आउटडेटेड. सी आर्कियाक, इंपॉर्टेंट वर्ड. ओल्ड फैशन्ड, है ना, जिसको फैशन में नहीं है अभी. करेक्ट. मॉडर्न या करंट. ऑब्सोलीट इज आउटडेटेड. ओल्ड फ्लॉपी डिस्क्स आर नाउ ऑब्सोलीट. Ostentatious is showy, flashy, pretentious, modest या simple. He wore an ostentatious gold watch to the party. Flashy थी उसकी gold watch. I'll tell you one synonym. Flamboyant, gaudy. Okay? These are 2 more synonyms. Next. Prolific. Prolific is highly productive, highly fertile, है ना. fertile भी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे. fertile, fruitful, productive. अब opposite क्या होगा. unproductive या barren, है ना. The prolific author published 3 books this year. He was highly productive. I'll tell you one synonym for this, okay.
Fecund. Fecund is also fertile, fruitful, productive. This is a new word for you. Okay, ये new word आपके लिए हो सकता है ना? Next, resilient is very strong, having strength, recovering quickly, tough, adaptable. इसका opposite क्या होगा? Obviously fragile, weak, है ना? Children are often resilient after hardships. They are very strong. They recover quickly. Sporadic is occasional, irregular, scattered, या फिर एक न्यू वर्ड dispersed भी हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट या रेगुलर. ठीक है. स्पोरैडिक से मुझे याद आया एक और वर्ड, सोपोरिफिक. अब रिलेटेड नहीं है बट मुझे प्रोनाउंसिएशन से याद आया. सोपोरिफिक का मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग. सोपोरिफिक का मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग. ठीक है, जस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना. नेक्स्ट, टेनेशियस इज परसिस्टेंट, डिटर्मिन्ड, रेजोल्यूट. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? वीक विल्ड, इररेजोल्यूट. हर टेनेशियस एटीट्यूड हेल्प्ड हर सक्सीड. इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. टेनेशियस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. ओके, दिस इज अ बोनस लिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ये एक बोनस लिस्ट है. अब देखो इसमें से ना मैंने टैसिटर्न ऑलरेडी कर दिया है, मैंने मिटिगेट भी ऑलरेडी कर दिया है इसमें से, है ना. बट ये एक बोनस लिस्ट है आपके लिए. ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू दीज वर्ड्स ऑल्सो. काफी कॉमन वर्ड्स है ये सारे. ओके, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉमन फॉर जिपमैट एग्जाम्स. I had to stop somewhere. No, I can't go on creating word list, right? So if you calculate together, we have done around 50 words today. ठीक है, so अगर आप total करोगे so around हमने 50 most important words कर दिए हैं आज. ठीक है, please include this also. pragmatic also हमने कर लिया है आज, है ना. we did pragmatic also. Correct. So please make sure that you do all these words. This is just a one small bonus list for you. ठीक है. And guys, stay tuned on this channel because I am bringing top 30 phrasal verbs and idioms on Tuesday. So please make sure you remain tuned to this channel. And this is the top 50 word list that I have got for you. Please make sure you revise all these words multiple times before your exam. Okay? आप जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे उतने ज़्यादा आपको words याद रहेंगे. ठीक है? So please make sure that you revise these words every alternate day. काफ़ी अच्छी, काफ़ी compact word list है ये, है ना. So please make sure you revise them every alternate day. Okay? This is it guys. Thank you so much. Bye bye.